Hello students, let's continue with metals and non-metals, and we were discussing about the chemical properties of metals and non-metals, and in the previous class we discussed how metal reacts with oxygen, and today we are going to discuss how metal reacts with water. Generally when metal they react with water, they form metal hydroxide and hydrogen gas is released. Okay. Now different metals show different rate of reactivity with water. Okay. And the relative reactivity of metals, it depends upon its reactivity, right? And to know the reactivity of a metal, we must know the reactivity series. In the previous class also we have discussed about the reactivity series. So I will make the reactivity series. See here, the first position, the first metal is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, Au, gold. See here, this is the sequence of metal in a reactivity series, and you have to learn the same sequence that I have written on the board. So this is your assignment, that please learn the reactivity series. Okay. Now you see here, it is the arrangement of the metals in the decreasing order of their reactivity. This is the decreasing order of reactivity of metals. That is, as you move down the reactivity series, the reactivity of the metal, it decreases. That means potassium that occupies the top position in this reactivity series, it is the most reactive, and gold that occupies the bottom of the reactivity series, it is the least reactive metals. Okay. You can write down this potassium, it is most reactive, and this is least reactive gold. Okay. Now just see here. Now just to see the reaction of metals with water, let us take the first element, that is potassium. Okay. So when potassium, that is K, it reacts with water, that is H2O, it forms potassium hydroxide, that is KOH, plus hydrogen gas will be released, right? Similar with the case of sodium also. Sodium, it reacts, sodium, that is symbol is Na, reacts with water H2O, it forms sodium hydroxide NaOH plus hydrogen gas will be released, right? Now this potassium and sodium, they are very highly reactive. They are highly reactive elements, and so they show vigorous reaction with water, and its reaction may be violent, and this reaction is highly exothermic. That means large amount of heat is evolved when this reaction takes place. Okay. Now see here, these two metals are, they are so very reactive that they react with the cold water. ठीक है, हम यहाँ पे मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं ना, तो ये जो पोटेशियम सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव है that they will react with the cold water. Now see here what happens. See children, when this reaction takes place, now see here what will happen. Let us see this reaction with the help of an activity. We will take a beaker, right? Then add water to it. इसमें हम पानी ले लेते हैं, ठीक है? इसमें जब हम पानी ले लेंगे, उसके बाद what we will add to it, आप चाहे पोटेशियम ऐड कर लो या हम सोडियम भी ले सकते हैं. तो जैसे सपोज हमने इसमें फर्स्ट हम सोडियम ले लेते हैं या पोटेशियम, जो भी आप लेना चाहो. जैसे ही आप इसमें पोटेशियम ऐड करोगे पानी में या सोडियम ऐड करोगे, तो दिस सोडियम और पोटेशियम दे विल स्टार्ट floating on the surface of the water. It will start floating on the surface of the water. Now
as it start floating on the surface of the water, that means the reaction is proceeding, and as a result of this reaction we know that hydrogen gas will be evolved. Hydrogen gas will be evolved. Now this hydrogen gas being insoluble in water, it is insoluble in water, so it will try to escape out of the beaker. This H2 gas which is generated as a result of the reaction, it will try to escape out of the beaker. So when it will move out of the beaker, this hydrogen gas is highly flammable gas. It will come in contact with the oxygen. Oxygen is a strong supporter of combustion, and since this reaction is highly exothermic, बहुत सारी हीट एनर्जी जो है इस रिएक्शन से रिलीज होगी. इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज हो गई. यहाँ हाइड्रोजन है हाईली फ्लेमेबल, देन यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो क्या होगा, ये तीनों मिलके जो है दे विल कैच फायर. क्या हो जाएगा यहाँ, दे विल कैच फायर. दोनों की केस में सेम होगा, चाहे पोटेशियम ले लो चाहे सोडियम, दे विल कैच फायर. नाउ व्हाट हैपन्स, as a result of this fire, this sodium and potassium which is floating on the surface of the water, that will also catch fire. That will also catch fire and they will start burning, right? Now this potassium, when it will burn with a lilac color flame. Violet type of color के flame के साथ जो है potassium burn करेगा, और sodium जो burn करेगा वो एक golden yellow type of color से जो है सोडियम बर्न करेगा. तो ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत विगरस रिएक्शन होता है, एंड दिस सोडियम और दिस पोटेशियम इट मे कैच फायर. सो दे शो अ वेरी विगरस रिएक्शन विद वाटर. ठीक है, सो सी हियर, दिस इज द रीजन, सिंस इट इज वेरी रिएक्टिव sodium and potassium, so this is the reason why sodium and potassium are kept in kerosene. Sodium and potassium, they are kept in kerosene so as to cut their contact with the atmosphere, because they are so very reactive that they will react with the water vapors present in the atmosphere, and with that it will catch fire. So it is always kept in kerosene. ठीक है, so you can write down this question. This is a question for your home assignment, that why, you can take down this question, why sodium and potassium is kept immersed in kerosene. They are kept immersed in kerosene. ठीक है, this is a question for your home assignment. See, this is a very simple question and very important question. You can prepare this question for your exam also. ठीक है, why sodium and potassium are kept immersed in kerosene. Next let's come to the next element in the reactivity series. यहाँ लिख देते हैं जनरल इक्वेशन मेटल प्लस वाटर. ठीक है, अच्छा. Now next element in the reactivity series, it is calcium. ठीक है, अब कैल्शियम की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ. तो Ca कैल्शियम reacts with water H2O, it will form metal hydroxide, that is it will form calcium hydroxide CaOH whole twice, plus hydrogen gas will be released, Now this calcium is also a reactive metal. It will also react with cold water. In this reaction with calcium also, it is also exothermic reaction. It will also release heat, but here the heat released is quite less as compared to the reactive metal, that is potassium and sodium. Now see here, if you take a beaker, एक beaker लेते हैं and we will add water. beaker लेते हैं, इसमें हमने क्या रखा है, पानी. अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम. ठीक है, जैसे ही आप इसमें कैल्शियम की मेटल ऐड करोगे तो सोडियम और पोटेशियम के केस में हमने क्या देखा था, दे स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. हियर इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द कैल्शियम विल सिंक. ठीक है, यहाँ बनाते हैं डायग्राम. ये वाटर ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैल्शियम. जैसे ही हम लोग कैल्शियम मेटल इसमें ऐड करेंगे, कैल्शियम मेटल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस कैल्शियम विल सिंक. ठीक है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. राइट, अच्छा.
जब हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी तो हाइड्रोजन गैस विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम मेटल, ये कैल्शियम मेटल के सरफेस पे वो स्टिक हो जाएगी। एंड दिस हाइड्रोजन गैस बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, इट विल ट्राई टू एस्केप आउट ऑफ द बीकर, it will try to escape out of the beaker. Now what will happen when this hydrogen will move upward, it will take along with it the calcium metal. कैल्शियम मेटल को भी वो अपने साथ ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दिखाई देगा कि कैल्शियम मेटल जो है वो फ्लोट कर रहा है वाटर की सरफेस पे, कैल्शियम मेटल वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस आएगी बीकर के बाहर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पर उतनी हीट नहीं होगी कि ये तीनों मिलके जो है दे विल कैच फायर। तो यहाँ पर फायर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट उतनी हीट नहीं है जिससे कि फायर हो सके, ठीक है। तो ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन हीट एनर्जी, हीट रिलीज इज लेस एज कंपेयर टू द रिएक्टिव मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो इस टॉपिक पे बेस्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम जो है वो फ्लोट क्यों करता है जब उसे पानी में हम इमर्स करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया कैल्शियम के साथ रिएक्शन, किससे हुआ रिएक्शन, कोल्ड वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम और एक नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अब हम लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, मैग्नीशियम, इजंट इट। कैल्शियम के बाद हम मैग्नीशियम लेते हैं। ओके, मैग्नीशियम सिंबल इज Mg, water is H2O, will react with the both of them will react and they will form metal hydroxide यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्सिल 1, क्रॉस दी वैलेंसी, यू विल गेट द फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, और क्या रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, तो वो जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हमें मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पानी को थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम का मेटल ले लेंगे, पानी, वाटर ले लिया हमने, ठीक है, ये मेटल हो गया मैग्नीशियम का, और हम इसे हीट करेंगे एक बर्नर की सहायता से। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम वाटर के साथ कौन सी कंडीशन में रिएक्ट करता है, हॉट वाटर, वाटर जो है वो हॉट वाटर होना चाहिए, तब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम ऐसे करके यहाँ से होल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब और एक नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है रिएक्शन ऑफ वाटर विद एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, एल्यूमिनियम ले लो या जिंक ले लो या हम ले लेते हैं आयरन, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दी मेटल्स इज प्लेस अबव इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये काफ़ी लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस मैग्नीशियम, कैल्शियम इससे। तो ये क्या करेंगे, ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट विथ स्टीम, दे विल रिएक्ट विथ स्टीम। इक्वेशन को साइड में लिखेंगे यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, ठीक है। ये वाटर किस फॉर्म में रहेगा, स्टीम, ये होगा स्टीम के फॉर्म में। और स्टीम क्या होता है, इट इज द वेपर्स फॉर्म ऑफ द वाटर, isn't it? The vapor form of the water, it is called as steam. ये steam के साथ जो है वो react करेगा and you will get Al2O3. You will get aluminium oxide, that is Al2O3. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, दोनों को क्रॉस कर दो, you will get the formula Al2O3. और क्या होगा, और रिलीज होगी हाइड्रोजन की गैस, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। सिमिलर गोज विथ जिंक ऑल्सो।
Zinc also will react with water, that too in the steam form, and then it will form ZnO. Valency of zinc is 2, valency of oxygen is 2. दोनों को आप क्रॉस कर दो, you will get ZnO और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है. अब हम नेक्स्ट मेटल की तरफ आते हैं, आयरन. ठीक है. आयरन भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, आयरन विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ये Fe3O4 जो आयरन का ऑक्साइड है ये किस तरह से बनता है. ठीक है. अब ये हो गया. और ये जो रिएक्शन आपका, जो थर्ड रिएक्शन आप देख रहे हो, ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये क्या है? दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इसका रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है. ठीक है. अच्छा, तो अब ये रिएक्शन जो है एक मेटल स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. कोल्ड वाटर के साथ देखा हमने कैसे रिएक्शन हो रहा है, फिर हमने हॉट वाटर के साथ भी देख लिया किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है. अब एक मेटल स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक है. इसके लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं. आई विल ड्रॉ अ डायग्राम. जस्ट सी हियर, वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस इट हॉरिजॉन्टली. एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने और हम इसे क्या करेंगे, वी विल प्लेस इट हॉरिजॉन्टली. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कॉर्क से इसको कवर कर देंगे. ठीक है. हम इसे कॉर्क से कवर करेंगे और वी विल अटैच अ डिलीवरी ट्यूब इनटू दिस. यहाँ पे हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब अटैच करते हैं और ये जो टेस्ट ट्यूब हमने हॉरिजॉन्टल रखा है ना, इसे क्लैम्प करते हैं एक स्टैंड में. इसको इस तरह से क्लैम्प कर देंगे, एक स्टैंड में इसको हम क्लैम्प करते हैं. Okay, now see here, this delivery tube will open into the beaker filled with water. It will open into a beaker filled with water. ये बीकर लिया हमने, ये बीकर में हमने क्या ऐड किया है, ये बीकर में हमने ऐड किया है वाटर. ठीक है. और डिलीवरी ट्यूब जो है यहाँ ओपन हो रही है. टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेंगे glass full here. Now see here, this aluminium, and one more thing is there. Now one by one we will keep this metal inside this. यहाँ पे पहले हम जैसे एक एल्यूमिनियम का मेटल हमने ले लिया. ठीक है. अब ये ग्लास फुल जो है ये क्या है, एक इंसुलेटर है. ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं. हमें ये ग्लास फाइबर से मिलके बना हुआ ये इंसुलेटर है. दैट मीन्स इट विल नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड विल टेक ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर. ठीक है. पानी में इसको सोक करके हम इसे लेंगे. यहाँ हमने मेटल ले लिया एल्यूमिनियम. अब हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे. ठीक है. बाय यूजिंग अ बर्नर वी आर गोइंग टू हीट दिस. हम एक बर्नर की सहायता से इसे हीट करते हैं. हीट करने पे क्या होगा, दिस विल, द ग्लास फुल विल नॉट कंडक्ट हीट बट द वाटर प्रेजेंट, वाटर विच इज सोक्ड विद इट, इट विल स्टार्ट वेपराइजिंग. That water will start evaporating and it will form steam. It will form steam. Now when this steam comes in contact with this metal, when the steam comes in contact with the metal, then a gas will be liberated. A gas will be liberated. Now this gas which is liberated, it is colorless and also it is odorless. और एक बात है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. या तो कुछ चेंज इन द कलर होगा, या कुछ गैस इवॉल्व होगी, या उसके चेंज इन द स्टेट होगा, है ना. तो उससे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा इसमें अ गैस विल बी इवॉल्व. तो गैस, हमें कैसे पता चलेगा कि गैस इवॉल्व हुई है. दिस गैस विल पास थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब एंड यू विल फाइंड the bubbles, the gas bubbles in this water. ये जो पानी हमने बीकर में लिया है, यहाँ पे आपको गैस बबल्स दिखाई देगा. ठीक है. जब गैस बबल्स दिख रहा है इसका मतलब रिएक्शन कुछ हो रहा है, तभी तो गैस इवॉल्व हुई है. ठीक है. अच्छा, अब ये कौन सी गैस है, क्या इसका नेचर है, वो तो हमें नहीं पता. ये कलरलेस है, ये ऑर्डरलेस है. तो हम क्या करेंगे, ये जो गैस इवॉल्व होती है
इसे हम जो है कलेक्ट करेंगे, वी विल कलेक्ट दिस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम इस गैस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम इस गैस को कलेक्ट करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम ये गैस को, ये जो गैस हमने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट की है, इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे हम इसे चेक करेंगे? वी विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब के वहाँ हम एक बर्निंग कैंडल ले आएंगे। दिस कैंडल विल बर्न विद अ पॉप साउंड। If it burns with a pop sound, that means the gas evolved by this reaction is hydrogen gas, is hydrogen gas, okay. Now see here, this hydrogen gas is released and instead of metal hydroxide, what is formed? Metal oxide is formed. This metal oxide, that is aluminium oxide, is not soluble in water, so it will not form aluminium hydroxide. यहाँ aluminium hydroxide नहीं बनेगा। Same goes with the case of zinc, ठीक है। zinc जब पानी के steam form के साथ react होगा तो you will get the product as zinc oxide and not zinc hydroxide, and hydrogen gas will be produced. Similar with the case of iron, it reacts with water, same in the steam form, and the product Fe3O4 will be formed and hydrogen gas will be released, right. Now see here we have taken this metal aluminium, we can replace it with zinc. aluminium के जगह हम zinc ले लेंगे, अगले रिएक्शन में हम zinc लेके देख लेंगे, फिर उसके अगले रिएक्शन में हम आयरन भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब यहाँ आइए, लेड और उसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं, they do not react with water, they do not react with water at any condition, at any condition. ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन से मेटल्स? लेड और उसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में। इसीलिए बच्चों आपको बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसे आप याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करना, ठीक है। टेक इट एज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, ओके। सो दिस वाज रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, isn't it? What about the reaction of non-metal with water? See here, the non-metal, they do not react with water. Non-metal जो होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जो है एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस को हम प्रिजर्व करके हम इसे पानी में डाल के हम इसे रखते हैं, पानी में रखते हैं हम इसे इमर्स करके किसे, फॉस्फोरस को, जो कि एक नॉन मेटल है। और पानी में जब हम फॉस्फोरस को रखेंगे तो ये महीने, 2 महीने, इवन फॉर ईयर्स वो जो है आराम से पानी में रह जाएगा, उसे कुछ भी कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, राइट। नाउ लेट्स कम टू और एक प्रॉपर्टी आज हम देख लेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और वो है मेटल्स नॉन मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, कि मेटल नॉन मेटल एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरली व्हाट हैपेंस, दिस मेटल it reacts, metal they react with acid, they react with acids to form salt and hydrogen gas is released, right. They form salt and hydrogen gas is released. So this is the general equation for metal, the reaction of metal with acid. This we have studied in the chapter that is acids, bases and salt. In that chapter also we have come across so many reactions of metals with acid. Now just you see here, this potassium, sodium, calcium, they are highly reactive metal, isn't it? We have seen that they react so violently with oxygen, they react so violently with water, isn't it? So ये जो रिएक्शन है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का, इसे हम एसिड के साथ तो सोच ही नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन और वाटर के साथ ही जब वो इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं तो आप सोच लीजिए कि एसिड के साथ उनका कितना फास्ट और कितना वायलेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एसिड के साथ हम रिएक्शन शुरू करते हैं मैग्नीशियम से, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है
वो एसिड, जैसे हम एसिड अभी ले लेते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल्स कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। सॉल्ट क्या हो गया, MgCl2 का एक सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। कैसे, when metal reacts with acid they form a salt and hydrogen gas is released। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हम लोग एल्यूमिनियम की भी देख लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो है थोड़े लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसको भी अभी हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, सिमिलरली अभी नेक्स्ट मेटल हमारा क्या है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो गया, एल्यूमिनियम के साथ हो गया, अब जिंक के साथ करवाते हैं, है ना। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट फॉर्म में जब ये रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म ZnCl2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, जिंक की वैलेंसी 2 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बन गया, रिलीज हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेटल भी ले लेते हैं हम लोग, आयरन, Fe प्लस HCl, it will form FeCl2 plus H2 gas will be released. So you can see here this metal, they react with acid to form salt and water, right. Here the reaction was metal with hydrochloric acid. We can take another acid also. For example, we can take this thing, H2SO4. Let's see what happens. Mg प्लस H2SO4। और यहाँ एक चीज़ और आपको यहाँ नोट करना है कि मेटल्स जो कि हाइड्रोजन, मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द सीरीज, मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एट एनी कंडीशन। ये जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मैग्नीशियम का हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, क्या होगा। दिस विल फॉर्म अ सॉल्ट कॉल्ड एज MgSO4। ठीक है, प्लस here MgSO4 plus hydrogen gas will be released. Similar goes with the case of aluminium also. Aluminium, it reacts with H2SO4, it will give Al2SO4 whole thrice, aluminium sulfate. सल्फेट की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, आप क्रॉस कर दो वैलेंसीज को, यू विल गेट Al2SO4 whole thrice and hydrogen gas will be released. Similar with the case of iron also, Fe plus H2SO4 will give FeSO4, that is ferrous sulfate, plus H2 gas will be released. See here. So in all these cases we can see that when metal reacts with acid, it forms salt and hydrogen gas. In all the case you can see here. Now see here, the gas which is evolved, that is hydrogen gas. Now how can we know that the gas evolved is a hydrogen gas? Because it is a colorless and odorless gas. ठीक है, if we want to check it, we can just take the test tubes. जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, आप जिसको चेक करना चाहते हैं ऐसे हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, इसमें आपने ऐड किया HCl और हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ डाइल्यूट लेना है एसिड को। ठीक है, एसिड जो हमारा वो डाइल्यूट होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, इसमें हमने ले लिया एल्यूमिनियम, यहाँ पर HCl और डाइल्यूट HCl, और हम ले लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, वी विल सी द what reaction is taking place. As they both will combine, a gas will be evolved. Okay, now you can bring a burning candle here. एक burning candle हम ले आएंगे यहाँ पर, and when this comes in contact with the gas evolved, it will burn with a pop sound. It will burn with the pop sound, and we know that when this burns the pop sound, that means it is a conformation of the hydrogen gas, right? So this is how we can find out. And one more thing is there. This one more acid is there, that is HNO3, right? The metals, they do not show reaction with HNO3,
they do not show any reaction with HNO3. That is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent. तो क्या होगा, अगर मेटल को हम अगर HNO3 के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है ना, इसको ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा. तो एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर. इसीलिए HNO3 बीइंग हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन when it combines with metals. लेकिन क्या HNO3 कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता? तो ऐसा नहीं है. मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो दो मेटल ऐसे हैं जिसके साथ HNO3 रिएक्शन करके जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो और लेकिन उसमें हमने क्या कंडीशन है कि 1% ऑफ HNO3 होगा और 99% ऑफ वाटर होगा. 1% ऑफ HNO3 और 99% ऑफ उसमें वाटर होगा. ठीक है. सो चिल्ड्रन, today we have discussed the chemical properties of metal, and that is the reaction of metals with water and reaction of metals with acid. Okay, in the next class we will see the reaction of metals with other non-metals and the formation of ionic compounds. I think this much is enough for today, and we will continue in the next class. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.